السلام علیکم. آج کی ہماری ایکسرسائز ہے 1.3 کلاس 9 کی. اب اس کا سب سے پہلا کوسچن ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس تین مسلسل اعداد کا مجموعہ 42 ہے. سم آف 3 کنزیکٹیو نمبر از اکول ٹو 42. اب مسلسل اعداد کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاس تین عدد ہیں 4، 5 اور 6. تو یہ تینوں کیا ہوں گے؟ مسلسل اعداد ہوں گے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ مسلسل اعداد یہ کون سے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو نام دے دیں گے. اگر ایکس کا نام دے تو دوسرا کیا ہوگا؟ ایکس پلس 1، یعنی کہ اگر ایکس 4 ہو تو ایکس پلس 1 کیا بنے گا؟ 5 بنے گا. اسی طرح ایکس پلس 2 یہ ہمارے پاس تیسرا نمبر ہوگا، یعنی کہ 4 میں 2 پلس کریں گے تو 6. ایکس پلس 1 اور ایکس پلس 2 یہ تینوں مسلسل کنزیکٹیو نمبر بنیں گے. اب ہم کہتے ہیں کہ ان تینوں کو اگر پلس کرے تو کس کی ایکول آتا ہے؟ 42 کے. تو ہم ان تینوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ پلس کر دیتے ہیں. یہاں پہ ایکس اور ایکس یہ کتنا بن جائے گا؟ 3x بن جائے گا. 1 and 2 3x plus 3 is equal to 42 آ گیا. اب ہم نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے. یہ 3 پلس ہو رہے تھے، ادھر آ کے مائنس ہو جائے گا. اب 3 ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. x از اکول ٹو 13. یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. اسی طرح کوسچن نمبر 2 ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ہمارے پاس قائمت و زاویہ مثلث ہے، ایک رائٹ ٹرائی اینگل ہے. اب اس کی ایک سائڈ اے سی والی سائڈ جو ہے وہ √3 پلس √5 ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ 1 پلس √15 ہے. ہم نے اس کی جو اے بی والی سائڈ ہے اس کو اس فارم میں معلوم کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اے کی اور بی کی ویلیو کیا ہوگی. تو ہم اب ایریا ہے ٹرائی اینگل کا، مثلث کا، تو ٹرائی اینگل کا جو ایریا ہوتا ہے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ ہاف انٹو لینتھ انٹو ویڈتھ، یعنی کہ اے سی ملٹیپلائی بائی اے بی. ایریا ہمارے پاس کتنا ہے؟ 1 پلس √15 ہے. 1/2 اے سی ہمارے پاس کتنا ہے؟ √3 پلس √5، اور یہ ہمارے پاس اے بی آ گیا. اب یہاں پہ 2 تقسیم ہو رہا ہے، ادھر آ کے کیا ہو جائے گا؟ ضرب ہو جائے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس 2 + 2 √15 بنے گا، اور یہ ہمارے پاس ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ادھر آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ ہمارے پاس کوسچن کون سا بن گیا؟ جی ایکسرسائز 1.2 والا کوسچن بن گیا، جس میں ہم ڈینامینیٹر کو کیا کراتے تھے؟ ریشنلائز کراتے تھے. سمپل ہم اس کو ریشنلائز کراتے ہیں. 2 + 2 √15 اور √3 پلس √5 √3 مائنس، کیونکہ ہم کانجوگیٹ لیتے ہوتے ہیں، یہاں پہ پلس ہے تو ہم مائنس لگائیں گے اور ملٹی پلائی ڈیوائڈ کرائیں گے. اب اس کو ملٹی پلائی کراتے ہیں. 2 کو √3 سے کرائیں تو 2 √3 پلس 2 کو √5 سے کرائیں تو -2 √5 آ جائے گا. 2 √5 کو √3 سے کرائیں گے تو 2 √15 3 45 آ جائے گا. اور اس کو اگر ادھر کریں پلس مائنس مائنس 2 √75 اوور، یہاں پہ دیکھیں اے پلس بی اے مائنس بی ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ a² مائنس b². اب دیکھیں اب یہ دونوں ہمارے پاس 2 √3 ہے، -2 √5 یہاں پہ یہ 45 ہے. اب 45 اگر آپ کیلکولیٹر کے ساتھ کریں تو آپ کو √45 کا ڈائریکٹ آنسر آ جائے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں
کہ جو ہمارے پاس انڈر روٹ 45 ہے، اب 45 کا جو انڈر روٹ ہے تو یہ 9 5 تو 45 ہوتا ہے، اگر 9 کا انڈر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 3 انڈر روٹ 5 آئے گا، کیا آئے گا؟ تو یہ جو +2 انڈر روٹ 5 ہے، انڈر روٹ 45 ہے سوری، تو یہ 2 باہر ہے، تو جب 2 اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ کیا بنے گا 6 انڈر روٹ 5 بنے گا، یہاں پہ +6 انڈر روٹ 5 بنے گا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہ 75 ہے، اب یہ 75 انڈر روٹ کس کی ایکول ہوتا ہے؟ انڈر روٹ 75، یہ 25 3 دو ہوتا ہے، 25 کا انڈر روٹ لے تو 5 آتا ہے، یہ کیا آ جاتا ہے 5 انڈر روٹ 3 آ جاتا ہے۔ ویسے آپ کے پاس کیلکولیٹر ہوگا، انڈر روٹ 75 لے کے ایکول دبائیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ آنسر بھی آ جائے گا۔ اب دیکھیں مائنس، اب اس کا 5 آیا تھا، 5 کو 2 سے ملٹیپلائی کرائے تو -10 انڈر روٹ 3 آ گیا اوور، یہاں پہ دیکھیں انڈر روٹ سے کٹ گیا، یہ 3 آ گیا، 3 مائنس انڈر روٹ سے کٹ گیا 5 آ گیا، تو یہ ہمارے پاس 3 - 5 آ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 انڈر روٹ 3 اور -10 انڈر روٹ 3، یہ ہمارے پاس کتنا بنے گا -8 انڈر روٹ 3 اوور 3، اور یہ -5 ہے تو یہ -2 بن گیا۔ اسی طرح یہ والے دونوں انڈر روٹ 5 والے +6 ہے -2 ہے، +4 انڈر روٹ 5 اوور -2 بن گیا۔ یہاں پہ دیکھیں مائنس سے مائنس کینسل، 2 4 دا 8 تو 4 انڈر روٹ 3 آ گیا، پلس مائنس مائنس 2 1 دا 2 2 2 دا 4 2 انڈر روٹ 5 آ گیا۔ اب ہم اس کو اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں اے بی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 4 انڈر روٹ 3 -2 انڈر روٹ 5 از اکول ٹو اے انڈر روٹ 3 پلس بی انڈر روٹ 5 آ رہا ہے، تو یہاں پہ اے کس کی اکول آ جائے گا جی 4 کی اکول آ جائے گا، اور بی کس کی اکول آ جائے گا -2 کی اکول آ جائے گا۔ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے، ایک مستطیل ہے، اس کی ایک سائڈ 2 + انڈر روٹ 18 ہے اور دوسری 5 - 4 بائی انڈر روٹ 2 ہے۔ اب ہم نے اس کا ایریا معلوم کر رہے ہیں اور ایریا اس فارم میں معلوم کرنا ہے، ایریا کے اندر اے اور بی کی ویلیو بھی فائنڈ کرنی ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو ایریا ہوتا ہے، ایریا کا فارمولا لینتھ انٹو وڈتھ ہوتا ہے، لینتھ ملٹیپلائی بائی وڈتھ۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ ایریا تو ہمارے پاس آ رہا ہے اے پلس بی انڈر روٹ 2 آ رہا ہے، اور لینتھ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 2 + انڈر روٹ 18، وڈتھ کیا آ رہی ہے 5 - 4 اوور انڈر روٹ 2 آ رہی ہے۔ اب ہم اسی کو سالو کرتے ہیں، صرف 2 + انڈر روٹ 18 5 - 4 اوور انڈر روٹ 2، 2 کو 5 سے ملٹیپلائی کرائیں گے تو کیا آئے گا 10، 2 کو ادھر ملٹیپلائی کرائیں گے تو -8 اوور انڈر روٹ 2 آ جائے گا، پلس انڈر روٹ 18 کو 5 سے ملٹیپلائی کرائیں گے تو 5 انڈر روٹ 18 آ جائے گا، اور اس کو جب ادھر ملٹیپلائی کرائیں گے ہم تو -4 انڈر روٹ 18 اوور انڈر روٹ 2 آ جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس 10 ہے اور یہ 8 اوور انڈر روٹ 2 ہے، اب 8 اوور انڈر روٹ 2 کو 8 کو آپ پتہ ہے کہ ہم 4 × 8 لکھ سکتے ہیں، اور نیچے کیا ہے انڈر روٹ 2 ہے۔ اب یہاں پہ بلکہ اس کو ادھر اگر جگہ ہو یا آپ کو نظر آ رہا ہو تو ادھر رف ورک میں اس کو کر لیتے ہیں، 8 اوور انڈر روٹ 2، 8 اوور انڈر روٹ 2 اس کو کریں گے 4 × 8 اوور انڈر روٹ 2، تو یہ 2 جو ہے اس کو انڈر روٹ 2 لکھ سکتے ہیں، یہ کینسل ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 10 - 4 انڈر روٹ 2۔ اب 5 انڈر روٹ 18 ہے، 5 انڈر روٹ 18، 5 18 کو کیا کریں گے 9 × 18 ہوتا ہے، تو 9 کا انڈر روٹ کیا آئے گا 3 آئے گا، 5 3 دا
15 अंडर रूट 2 आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 15 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें जो हमारे पास अंडर रूट 18 है, अगर आप ध्यान दें तो ये जो हमारे पास अंडर रूट 18 था ये 3 अंडर रूट 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये जो 4 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अंडर रूट 18 की जगह पे हम 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2। तो ये से कट गया, 4 3 12 बच गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये देखें ये 10 है और ये -12 है, तो ये हमारे पास एक्सक्यूज मी +10 -12, तो ये हमारे पास -2 आ गया। इसके बाद ये 15 है, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +11 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब इसको हम इसके साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये है a + b अंडर रूट 2 इज इक्वल टू -2 + 11 अंडर रूट 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहते हैं कि दो आदाद हैं हमारे पास, उनको अगर आप प्लस करें तो आपके पास 68 आ रहा है आंसर, और अगर आप इनको माइनस करें तो 22 आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि पहला अदद कौन सा है और दूसरा अदद कौन सा है। हम कहते हैं कि पहला अदद x की इक्वल है और दूसरा अदद y की इक्वल है। अब दोनों अदाद को जमा करें तो 68 आंसर आता है और दोनों अदाद को माइनस करें तो 22 आंसर आता है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशनें बन गई हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। बाय कंपैरिजन मेथड आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, और भी मेथड हैं। तो यहाँ पे हम आसान मेथड की तरफ जाएंगे। वो क्या है, x + y इज इक्वल टू 68 है, x - y इज इक्वल टू 22 है। यहाँ पे अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये +y और -y आपस में कट जाएगा। x और x कितना आ जाएगा, 2x, और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आएगा, 90। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 45 आएगा। x यानी कि पहला अदद हमारे पास 45 है। अब जो x की वैल्यू है इसको 68 वाली इक्वेशन में या 22 वाली इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में मर्जी पुट कर दें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। x + y इज इक्वल टू 68 है। अब x की जगह पे अगर 45 लिख देंगे तो आप देखें y इज इक्वल टू 68, ये प्लस का 45 है तो इधर आके माइनस का 45 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। जो पहला अदद है वो 45 आएगा और जो दूसरा अदद है वो 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें महकमे मौसमियात ने बताया कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम चाहते हैं कि ये जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको फ़ारेनहाइट में तब्दील कर दें। तो ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला भी उसने क्वेश्चन में लिखा है। हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे और ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है ये उसने क्योंकि हमें 48 बताया है तो डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 48 पुट कर देंगे। F इज इक्वल टू 9 × 48 ओवर 5 + 32। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। अब देखें 9 8 72, 7 आ गया तो ये आ गया 432 ओवर 5 + 32। तो अब आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। अब अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा। 432 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 5 3 15 और 1 कितना आ जाएगा, 16। अब इन सब को प्लस करें तो क्या आएगा, 2, 6 और 3 कितना आएगा, 9, 4 और 1 कितना आएगा, 5 ओवर 5।
तब आप इसके ऊपर 5 का टेबल ले जाएं, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 4 बच गया, 5 8 द 40 और 5 4 द 20। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि बाप और बेटे हैं, अब उनकी जो उम्र है उनको अगर जमा करें, बेटे की उम्र और बाप की उम्र को जमा करें तो हमारे पास 72 आ रहा है, 72 आ रहा है। और अगर 6 साल पीछे चले जाएं तो जो बाप की उम्र थी वो बेटे से डबल थी, यानी कि अगर बेटी की उम्र 10 थी तो बाप की उम्र 20 थी। इसको हमने सबसे पहले, हमें नहीं पता कि फादर की उम्र कितनी है या सन की उम्र कितनी है, तो हम सन की उम्र एक्स की इक्वल रख लेते हैं और फादर की उम्र वाई की इक्वल रख देते हैं, क्योंकि दोनों की एज को प्लस करें तो 72 आता है, तो हमने दोनों की एज को प्लस कर दिया। अब 6 साल पहले, आज अगर फादर की उम्र वाई है तो 6 साल पहले वाई -6 थी, यानी कि आज अगर 20 साल है तो 6 साल पहले 14 थी, 20 नफी 6। इसी तरह सन की उम्र अगर आज 10 थी तो 6 साल पहले 4 साल थी, यानी कि x -6 आएगा। और ये कहता है कि 6 साल पहले जो सन था इसकी एज को अगर 2 से ज़रब दें तो फादर के बराबर आता है, यानी कि जो फादर की एज है वो सन की एज से डबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर सन की एज है 10 और फादर की एज है 20, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 आएगा ना। तो हमने क्योंकि इक्वेशन में लिखना है तो इक्वेशन को हमने बैलेंस करके लिखना है। अब यहाँ पे देखें, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। y -6 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2x -6 टू द 12 आ गया। यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इसको अगर सॉल्व करें आप तो 2x, ये प्लस y इधर आके -y हो गया, -6 पहले इधर है, ये -12 इधर आके +12, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 6 इज इक्वल टू 2x -y। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दोनों इक्वेशनों को हम लिखते हैं, 2x -y इज इक्वल टू 6, x + y इज इक्वल टू 72। अब देखिए ये +y और -y आपस में कैंसिल हो गया, 2x और x कितना आ गया, 3x आ गया, 72 में 6 प्लस करेंगे 78 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 द 6 और 3 6 द 18। x हमारे पास कितना आ गया, 26 आ गया। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर आप लिखें x + y इज इक्वल टू 72 है। तो अब x हमारे पास कितना है, 26 है, 26 + y इज इक्वल टू 72, y इज इक्वल टू 72। ये प्लस का 26 है तो इधर आके माइनस का 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 72 में से 26 माइनस करने हैं, 12 में से 6 गया, 6 आ गया, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। ये उनकी एज है। अब अगर 6 साल पीछे चले जाएं, यानी कि आज अगर फादर की एज 46 है और सन की एज 26 है, तो 6 साल पहले की अगर एज निकालें तो हमारे पास 6 साल पहले की एज क्या थी, x -6 है, x -6 क्या आएगा, 26 - 6, तो ये कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह y -6 इज इक्वल टू 46 है, तो 46 - 6 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि 6 साल पहले सन की एज अगर 20 थी तो फादर की एज कितनी थी, 40 थी। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि एक खिलौना है, एक टॉय है जो 1500 में ख़रीदा गया और 1520 रुपये में बेचा गया। तो अब हमने उसका प्रॉफिट निकालना है और इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो देखिए हमारे पास जो कास्ट प्राइस है टॉय की वो 1500 है और उसकी जो सेल प्राइस है वो 1520 है। तो हमें जो प्रॉफिट आएगा 1520 माइनस 1500, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 20/1500 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो ये 2 0 से 2 0 काट गए, 5 3 द 15 और 5 4 द 20, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4/3% आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि एक आदमी है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 है। अब उसने इसके ऊपर टैक्स देना है और 1,30,000 की जो रकम है वो टैक्स से मुस्तशना है, एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। अब 9,60,000 रुपये उसकी आमदन है, 1,30,000 उसका मुस्तशना है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8,30,000, ये हमारे पास वो रकम आएगी जिसके ऊपर उसने टैक्स देना है। अब टैक्स का रेट कितना है, 0.75% है। तो ये टैक्स कैसे देगा, मल्टीप्लाई बाय 75, पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट की जगह पे 1 आया, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। इसी तरह आप परसेंट है, तो याद रखें जब भी परसेंट फीसद हटाना होता है तो हमने 100 से क्या कराना होता है, डिवाइड कराना होता है। जब भी परसेंट फीसद लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है, हटाना है तो 100 से डिवाइड कराना है। अब ये 4 0 से 4 0 कट गए तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लें। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें वो कहता है कि एक आदमी है, उसकी आमदन है 3,75,000। अब इसके ऊपर उसने 14% सालाना जो मुनाफा है वो कितना आ रहा है उसका, ये हमने मालूम करना है। अब जो हमारे पास कंपाउंड उसका मार्कअप है या उसका जो सालाना मुनाफा है वो अगर हमने मालूम करना हो तो इसके लिए ये होता है कि अगर उसे 1 साल का मालूम करना है, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास ये सवाल है 3,75,000 हमारे पास सालाना आमदन है और 14% हमने इसके ऊपर क्या करना है, ये जो रेट के साथ हमने इसके ऊपर मुनाफा लेना है। तो मार्कअप लेने के लिए आप आसान सी बात याद रखें कि हमारे पास 3,75,000 है, इसका हमने 14% निकालना है। 14% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14 को 100 से डिवाइड करा देंगे। अब ये जो 2 0 हैं 2 0 से कट गए। अब इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कराएं, 14 को 0 से कराएं। अब 14 को 0 से कराया, 14 को 5 से कराया, 70 0 और 7 इसका आ गया। 14 को 7 से कराएं और ये कितना आ गया, 5 10 आ गया। अब 14 को 3 से कराएं, 42 और 10 52। तो ये देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि सालाना आमदन है 3,75,000, हमने 14% से उसका मार्कअप यानी कि उसका मुनाफा निकालना है, सालाना मुनाफा निकालना है। तो ये सिंपल हम इसको 14% निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वैसे अगर ये लार्ज स्केल पे आ जाए इस क्वेश्चन, जैसे अगर 2 साल का निकालना होता, 10 साल का या 5 साल का, 15 साल का, ज़्यादा दौरानी का निकालना होता तो फिर हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले में से हम इसका निकालने के बाद इसको माइनस कराते हैं, यानी कि ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती, यहाँ पे लिखते रेट जितना भी 14% है वो लिखते, तो इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ से हमें टाइम की जगह पे हम लिख सकते थे भाई जितना भी टाइम है, यानी कि ये जो कंपाउंडेड होता है यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, सालाना यानी कि साल में 1 दफ़ा मिलेगा। कंपाउंडेड वीकली हो सकता है, कंपाउंडेड मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर हमें ये क्वेश्चन स्पेसिफिक फाइनेंस की फील्ड का मिलता तो फिर तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते कि नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपका मेथड था क्वेश्चन का, इसको आपने हल करना है। एक्सरसाइज 1.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आपने क्या करना है, एक एक क्वेश्चन देखना है, देखने के बाद एक क्वेश्चन पहला समझने के बाद उसको कॉपी पे हल करना है, साथ आपने कॉपी साथ रखनी है, फिर अगला क्वेश्चन समझना है और
اس کو سالو کرنا ہے، پھر اگلا تیسرا کرنا ہے، اسی طرح آپ نے پوری ایکسرسائز کو مکمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں سے اگر کچھ کنفیوژن ہے یا کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے پوچھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرانا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو کلاس فیلوز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے اس چینل کو شیئر کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو یہ میتھ کی جرنی ہے وہ سموتھلی چلتی رہے۔ تو تب کے لیے اللہ حافظ۔